सो गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग देख सकते हो मैं बहुत जल्दी तैयार हूँ। ऐसे तो घर में सोती रहती हूँ इस वक्त, बट जब बात हो घूमने का देन हाउ कैन आई मिस दिस सच अमेजिंग प्लेस टू विजिट। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, एंड हमारे पास जो गाइड है वो भी आने वाले हैं, उनका वेट कर रही हूँ। काफ़ी बोरिंग तो लगता है वेट करना, बट स्टिल आई कैन मेक इट। आज के लिए माफ़ है सब। This is our guide, and we are in the streets of Ho Chi Minh. On the streets. ऐसे रास्ता तो काफ़ी साफ है यार। इंडिया के रास्ते से भी आप देखो, इतना क्लीन, इतना क्लियर रास्ता है, क्या ही बोलूँ। से मैं कल रात में भी आ रही थी तो भी वहाँ पे स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड में था। एक्चुअली क्या होता है ना, हम इंडियंस को बहुत डर लगता है, लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग होता है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है यार। वो चल तो लेफ़्ट साइड, यहाँ पे सारी चीज़ ऑपोजिट है। इंडिया में जैसे राइट होता है, इनका लेफ़्ट होता है। सो आई एम वेरी स्कैर्ड अबाउट इट यार, लिटरली सारी चीज़ ऑपोजिट है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है इंडियंस वालों को। एंड मेरा तो फर्स्ट टाइम है बाहर जाना, फॉरेन जाना। ये मेरा फर्स्ट बकेट लिस्ट में फर्स्ट था। मुझे 169 कंट्रीज़ ट्रैवल करना है, उनमें से वियतनाम फर्स्ट मैंने प्लेस किया भी, क्योंकि इस यहाँ पे वीज़ा जो है आपको इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम चल पड़े हैं रास्ते में चू बेन थांग मार्केट। So the market features classic French Indo-Chinese architecture, including a striking clock tower, high ceilings, natural ventilation, and durable materials suited to the tropical climate. The clock tower, situated above the southern gate, has become an unofficial emblem of Ho Chi Minh City. Major transformations have been done or updating infrastructure while preserving the original facade and iconic element. More recently, enhancement completed in 2022 improved lighting, signage, accessibility, and surrounding plaza without compromising its historic charm. Today, the market spans over 13,000 meters square per houses, around 1,500 stalls, and serves thousands of visitors daily. ये सारे मार्केट्स हैं जो कि तुम खरीद सकते हो होलसेल मार्केट जैसे। Ben Thang Market, the beating heart of Ho Chi Minh City, has a history that stretches back more than 300 years. It began in the 17th century as a simple riverside market near the Sangong River, where locals gathered to trade goods. Its name comes from Ben, harbor, and Thang, citadel, since it once stood near the Jiadin citadel. During the French colonial period, the market was rebuilt with a more organized structure, but suffered a devastating fire in 1870. To replace it, the French constructed new modern building between 1912 to 1940 with strong fireproof material and a striking clock tower with symbol Saigon today. Over time, Binthang Market has grown into massive complex of over 1,500 stalls, offering everything from spices, textiles, handcrafts to local street food. Major renovation in 1885 and again in 2022 modernized the facilities while preserving the historic charm. Today, with the new Metro Line 1 station at its doorstep, Binthang remains both a history iconic and a vibrant shopping destination for locals and travelers alike. More than just a market, Binthang is a living witness of Saigon transformation from a colonial outpost to a modern bustling metropolis. तो ये है वही जो फेमस मार्केट है, ये वो है। एंड पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी।
यार मेरे साथ तो खिलवाड़ हो गया। मैंने अपने गाइड को बोला था कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, बट उन्होंने उस टाइम नहीं लेके गए मुझे। ये मार्केट पहले घुमा दे, उसके बाद मैं एक्सचेंज करती हूँ। एंड आई डोंट हैव राइट नाउ यहाँ का जो डोंग चलता है, वियतनाम का जो करेंसी है उसको बोलते हैं डोंग। तो यहाँ पे सारे चीज़ आपको डोंग में मिलेगी, मतलब जो प्राइस जो होता है वो डोंग में मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होता है और यहाँ पे वो चीज़ डोंग बोलते हैं। सो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ मैं ले ही नहीं पा रही हूँ यार। शिट यार, शिट इतने सारे चीज़ें हैं और इतना सस्ता है। मैंने आई मस्ट से कि यार अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ मेंटली रेडी हो के आओ कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। बट बाय द वे ये तरीका, ये ट्रिक काम किया। अगर पैसे लेके जाती तो फिर पक्का ख़त्म हो जाता और मुझे प्लेन में भी जो लगेज होता है ना 1 kg और बढ़ाना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। बट थैंक्स टू गॉड, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है यार। बच गई मैं। हाय, मुझे बहुत सस्ता है एंड इट्स अ होलसेल हब है ये प्रॉपर। तो आपको कुछ भी चाहिए सब मिलेगा यहाँ पे एकदम आधे रेट में। इट्स सो चीप। गाइस अब मैं जा रही हूँ। पहले तो मुझे अपने करेंसी एक्सचेंज कराना है। ओह आई एम टायर्ड ऑफ दिस। बिना पैसे के कैसा फील होता है, आई कैन फील। ओह फाइनली गॉट माई मनी गाइस। से ही लिए बहुत अच्छा रेट से लेंगे। बाहर परचेज साइट्स कुछ भी ऐसी जगह से परचेज करना है वो शॉप से ही परचेज करना है। मैंने चला दिया है अपनी $150 मैंने कराया है अभी फिलहाल इसमें मेरे को मिल रहा है ये 3 मिलियन नियर बाय। 3 मिलियन या 4 मिलियन आ रहा है ये। बट अगर गोल्ड शॉप से नहीं लेती तो फिर ये मुझे पता नियर बाय समथिंग अराउंड 3,800 कुछ होता है। 3,900 में मिला तो इट्स बेटर रेट ऑफ गोल्ड की शॉप से लीजिए, यू विल गेट बेटर रेट। बट डोंट परचेज इन फ्लाइट्स जो एयरपोर्ट में मिलते हैं, या बैंक से भी आप ले सकते हो। बट मैंने प्रेफर किया गोल्ड शॉप से। सो गाइस बेटर रेट्स के लिए आप गोल्ड शॉप पे जाइए, यू विल गेट बेटर एंड एक्स्ट्रा रेट्स। सो गाइस अब हम चलते हैं दूसरे प्लेस। दिस इज़ कॉल्ड पगोड़ा, जेड एम्परर पगोड़ा। वन ऑफ द हो ची मिन सिटीज मोस्ट sacred temples built in 1909 by Cantonese immigrant. This pagoda dedicated to the Jade Emperor, the king of heaven in Taoist belief. As soon as you enter, the smell of incense fills the air. The wooden halls are filled with hundreds of intricate statues of deities and guardians, each telling its own story from Buddhist and Taoist tradition. What makes this place truly special is the mystical atmosphere, dim lighting, candle flames, and centuries old carvings that transport you back in time. Even former US President Barack Obama visited this pagoda in 2016, making it internationally famous. For locals, it's not just a tourist attraction, but a living place of prayer where people come to wish for health, love, and prosperity. तो अब हम जा रहे हैं एक कॉफ़ी पीने। तो दिस इज़ द व्यू। One of the highlights of my tour was tasting the famous Vietnamese egg coffee. This unique drink was first created in Hanoi in the 1940s. During a milk shortage, when a creative bartender whisked egg yolk with sugar and condensed milk to replace cream, the result is a rich, creamy foam that sits on top of strong Vietnamese coffee, almost like a sweet dessert in a cup.
The taste is smooth, velvety, and unlike any other coffee in the world. Today, Egg Coffee has must try experience across Vietnam. And sitting in a cozy cafe in Ho Chi Minh City, sipping this iconic drink felt like discovering a piece of history and culture in every sip. कॉफ़ीज़ तो पी लिए, चलो अब चलते हैं हमारा मेन, जहाँ पे हम राइड करेंगे अ क्रूज़. सो दिस इज़ द क्रूज़ शिप. वी हैव बीन एडजस्टेड wherever we want to. We visited the iconic Bitexo Financial Tower, one of the tallest building in Vietnam, before boarding a river cruise. From the deck, we watched the city light up as the sun set, a breathtaking view of modern Saigon against the golden sky. So this is the view. You can enjoy. Here we go, shining. इतनी गर्म थी वहाँ पे, क्या ही बोलूँ यार, इतना गर्म, एकदम सिनेरियो चेंज हो गया वहाँ पहुँचते ही, एकदम गरम गरम हवा. ओ माय गॉड, आई कांट से. और वहाँ का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम था, क्या ही बोलूँ मैं. बट रेनफॉल भी तो हो रहा था साथ ही साथ, साइड बाई साइड यू कैन सी. सो आई एम एन्जॉइंग. आप लोग भी एन्जॉय करो व्यू. तो गाइस, यहाँ तक आप हमारा सफ़र था. यहाँ से आप राइड कर सकते हो क्रूज़ में. तो हमारा राइड अभी ख़त्म होने वाला है. सो एक साइड से दूसरे साइड तक आपको क्रूज़ पे लेके जाते हैं. खाना वाना सब रहता है. यू कैन एंजॉय लाइक इन गोवा. जस्ट एंजॉय द वाइब. आप वो जो सनसेट का मज़ा सब आप सब ले सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे. यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग. और उनका जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टावर है वो भी आप देख सकते हो. तो फाइनली आई एम गोइंग फ्रॉम हियर. हमारी कार आ चुकी है एंड वी हैव बीन सीटेड. सो अभी हम जा रहे हैं. हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही आज का. आफ्टर रीचिंग होटल हमारे लिए जकूज़ी रेडी हो गया था. होटल वालों ने जकूज़ी सेट कर दिया था. एकदम पहुंचते ही सीधा टूट पड़ी से नहाने के बाद गर्म पानी से आपको लगती है भूख. और मैं चली वॉकिंग स्ट्रीट पे हो ची मिन सिटी के. यहाँ पे आपको बहुत सारे फिश, सी फूड सब दिखेंगे. सारे जानवर यहीं दिख जाएंगे. यहीं पे जितने जितने बाहर आपको दिखता है, लाइक सी हॉर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रे फिश, क्रेप फिश सब दिख जाएंगे ए टू जेड. आप इट्स जस्ट लाइक गोवा में जैसे रहता है ना, वैसा ही है ये यहाँ पे भी वॉकिंग स्ट्रीट. तो मैं चली अभी खाना खाने, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने. एंड मैं खाऊंगी इंडियन खाना. एंड तब तक के लिए आप एंजॉय करो, व्यूज़ देखो कैसा है. ये आप देख सकते हो सारे सी फूड, क्रैब से लेके ऑयस्टर से लेके ऑक्टोपस तक सब है, सब अवेलेबल है. हर चीज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हो आराम से. एंड मैं चली खाना खाने. तब तक के लिए आज का जो व्लॉग है पार्ट 2 है ये यहीं पे समाप्त होती है. नेक्स्ट जो आएगी हम जाएंगे मैक्लोडगंज. नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो हो जाएगा मेकोंग रिवर डेल्टा, तो उस पर बनेगी. सो गाइस बाय. तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा. टेक केयर, गुड नाइट. गाइस आप लोग हमेशा होटल डिस्ट्रिक्ट 1 पे लेना, हो ची मिन सिटी डिस्ट्रिक्ट 1, ताकि आपको हर चीज़ पास पड़े. मेरे लिए तो ये वॉकिंग डिस्टेंस था, जस्ट 5 मिनट्स लगे. मैं पैदल ही चल के अपने होटल से मैं आ गई यहाँ पे अकेले. सो आप डिस्ट्रिक्ट 1 पे लोगे तो आपको सारे जो जगह है पास मिलेगी. दैट्स फॉर टुनाइट. गुड नाइट एंड टेक केयर. नो बॉयज़, बी अवेयर ऑफ स्कैम. अगर आप आते हो तो आप फंस जाओगे. लड़कियाँ आपको यहाँ पे फंसा देगी. ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं. जैसे कि थाईलैंड में भी हो रखा है, तो हर जगह स्कैम होता है. तो आप पी तो लोगे, वो बोलेगी आपको कि मुझे एक ड्रिंक बना के आप दे दो या ड्रिंक पिला दो. तो आप बना के उसको पिला दोगे लड़की को, बट वो जो
डोंग होगा उसके लिए डबल रेट होगा जब उसको आप पिलाओगे, बट आपके लिए वो सस्ता रहेगा। सो ये चीज़ आप याद रखना कि स्कैम से सब बचे रहना, ठीक है। चलो, और अगर आप रास्ते में चल रहे हो, अगर लड़के ने देख लिया, वो बाइक से या स्कूटी से आएगा आपके पास, आपको पूछेगा सर आपको कुछ वीड होना, इनफैक्ट आपसे ड्रग्स के लिए भी पूछ सकता है। तो आप लोग थोड़ा होशियार रहना एंड देखना। टेक केयर, गुड नाइट।